Hello and good morning, friends. I once again welcome you all in this online class. So, after a gap of you see 8 to 10 days, we are back with a new lesson, and I personally congratulate all of you for the good result in the first periodic test that you have given in the last week. So, the next lesson here we will see today is The Rat Trap by Selma Langerlof. Now, friends, a rat trap, you see, is very common. Uh, you can find it around in each Indian home or anywhere. But this lesson has a symbolical meaning for this rat trap. And we will see who is the rat and what was the trap the writer is talking about. So, this particular lesson is typically very much symbolical. You can say written and told in the form of a folk tale that may not be credible, but it has certain things to learn, to understand, and this lesson also is full of certain human values that we should cherish, and that are the compassion, the love, the belief, the sacrifice, and so many other values that we should cherish in our lives. Dear friend, there are certain characters also in this lesson. There are 4 to 5 very major characters, and each character has a typical fragrance of their own personality, whether it is the protagonist, the rat trap peddler itself, or the daughter of the iron master, or the iron master himself, or that crafter. Each one has a particular sense of judgment in themselves, and by and large, this comprehensive story about each character has given us an universal message of love and compassion. So we will see this. The lesson is large enough, long enough. You see, it has covered 7 to 8 pages, but still it is very beautifully edited and beautifully written by the writer, the Swedish writer. You must have uh, known her for the first time in this chapter. So, the rat trap. So, this is the rat trap, picture of the rat trap. You see, uh, there is certain bait over there. कोई bait वहाँ पर रहती है. मान लीजिए चीज़ का टुकड़ा है या कोई टुकड़ा, खाने का टुकड़ा वहाँ पर हम डालते हैं, और इस रैट ट्रैप में जो है ये चूहा फंस जाता है. तो इस तरह की कुछ है कहानी है, और ये सिंबॉलिकल भी स्टोरी है पूरी, कि ये पूरा वर्ल्ड जो है एक रैट ट्रैप है. पेडलर हमें एक फिलोसॉफिकल मैसेज भी इस लेसन के माध्यम से देता है, या हमको इस लेसन के माध्यम से वो मैसेज मिलता है कि ये पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है, और हम जो है हम है रैट,
ह्यूमन बींग्स क्या है, रैट है, और वो अपने डिज़ायर्स के पीछे अलग अलग प्रकार के प्लेजर्स के पीछे, परमानेंट प्लेजर्स और टेम्पररी प्लेजर्स के पीछे, चाहे वो मनी है, चाहे वो जॉयज़ है, हैप्पीनेस है, इनके पीछे जो है वो ट्रैप में फंसता जाता है और उस ट्रैप में वो फंस के रह जाता है। तो इस तरीके की कुछ स्टोरी है, बड़ी सुंदर सी स्टोरी, रैट ट्रैप। और लगने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, एंड द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज इन द आयरन ओर्स ऑफ स्वीडन। स्वीडन के आयरन ओर में इसका सेटिंग है इस स्टोरी का। और more than a folk tale, more than a legend, more than a pebble, this story, you see, seems very much credible, that you can say that this is the story you can see around your neighborhood. Okay. So, the writer of the Rat Trap is Mrs. Selma Lagerlof. Mrs. Selma Lagerlof, 1858 and 1940, she was born in Ostra Imtervik, Warmland, Sweden. She was a Swedish writer. She was brought up on Marbeka, the family estate, which she did not leave until 1881, when she went to a teacher's college at Stockholm. In 1885, she became a teacher at the girls' secondary school in लैंड्स क्रोमा। सो अब थोड़ा इसको पढ़ लेना, ये मैडम के बारे में इंफॉर्मेशन है जो इसकी राइटर है। ओके, फाइन। सो इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। So the rat trap is a story that gives us a psychological insight into the human nature. The author highlights how greed for material things entraps human beings. क्या बोल रहा है? How, ये लेसन हमको बताता है कि हाउ ग्रीड फॉर मटेरियल थिंग्स इंट्रैप्स ह्यूमन बींग्स। हम जो इंट्रैप्ट होते जाते हैं, हम जो है फंसते जाते हैं, किस चीज़ में फंसते जाते हैं हम? In the greed of material things. The story also affords the belief that the essential goodness of a human being can be awakened through love and understanding. लेकिन हमारे अंदर जो इसेंशियल गुडनेस है वो कहीं छिपी हुई है, किसी एक जोत के जैसे, फ्लेम के जैसे वो कहीं छिपी हुई है, और उसको जो है बाहर लाता है हमारे अंदर का लव और अंडरस्टैंडिंग। इट ब्रिंग्स इन टू फोकस द आइडिया दैट द वर्ल्ड इज ए रैट ट्रैप। और जैसे जैसे इस कहानी को हम पूरा करेंगे, पढ़ेंगे, हमारे ये भी समझ में आ जाएगा कि दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट ए रैट ट्रैप, और वो एक एक व्यक्ति को जो है अपने अंदर खींचता जाता है। Riches, joys, shelter, and food are all lucrative bets to trap mankind. Yes, जो riches है, जो अमीरी है, हमें खींचती है। जो गरीब है वो चाहता है कि अमीर बने, जो अमीर है वो चाहता है कि और अमीर बने, जो और अमीर है वो चाहता है और अमीर बने। इसकी कोई सीमा नहीं है। जॉयज़, हैप्पीनेस, चाहे आदमी कितना ही हैप्पी रहे अपने जीवन में, हैप्पीनेस जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है। शेल्टर, शेल्टर के लिए आदमी तड़पता है। ये उस जमाने की स्टोरी है दोस्तों। इन द 19th century यू सी, और इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century यू कैन से, कि बहुत गरीबी वगैरह थी, वेगाबॉन्ड्स, आवारा लोग, जो शेल्टरलेस होमलेस लोगों की संख्या उस समय ज़्यादा थी। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर एज बेट्स, ल्यूक्रेटिव, यानी हमको लालच देते हैं। ये क्या, रिचेस है, जॉयज है, शेल्टर है, फूड है, ये सब के सब जो है लिक्विडिटी बेट्स है टू ट्रैप मैनकाइंड। तो हम इसको, ये मैनकाइंड को क्या करते हैं, हमको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, और हम उसमें जो है फंसते जाते हैं। ओके, नाउ
The story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history of that country. The story is told somewhat in the manner of a फेरी टेल. मैं कहीं एक जगह पढ़ रहा था कि स्वीडन इतना मिनरल्स में रिच है, आयरन ओर की इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वहाँ पे है कि यूरोप का लगभग 95% जो आयरन है, समझते हैं ना, आयरन ओर, आयरन की फैक्ट्री जहाँ पर आयरन मेल्ट होता है, पिघलता है, जहाँ पर आयरन बनता है, है ना, पिग आयरन से कच्चा आयरन जो होता है उसको पक्का आयरन बना के जो है पूरी दुनिया में वो भेजते हैं, फिर बेचते हैं. तो स्वीडन जो है, स्वीडन का 95% का प्रोडक्शन, स्वीडन में आयरन का प्रोडक्शन स्वीडन में होता है. द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल. ओके, देर आर सम कैरेक्टर्स. अ पेडलर विथ रैट ट्रैप पहला कैरेक्टर है. एक पेडलर है. पेडलर का मतलब होता है सेलर. पेडलर मीन्स नथिंग एल्स. हाँ, पेडलर में ज़्यादा परेशान नहीं होना है. पेडलर मीन्स सेलर. काय का सेलर है ये? रैट ट्रैप सेलर है. ओके. दूसरा है एक ओल्ड मैन है, क्रॉफ्टर है. क्रॉफ्टर का मतलब होता है आयरन ओर में काम करने वाला. आयरन ओर में जो काम करता है ना, आयरन को पिघलाने का काम, जो आयरन की फैक्ट्री में काम करता है उसको बोल रहा है क्रॉफ्टर. ओके, बिल्कुल सिंपली समझना है. थर्ड, मास्टर स्मिथ इन रैम्सजो आयरन मिल इन स्वीडन. वहाँ का स्मिथ है. स्मिथ समझते हैं ना, ब्लैक स्मिथ है ना, तो वहाँ का मास्टर स्मिथ है एक. ओके. उसके बाद हेल्पर्स इन द मिल, ब्लैक स्मिथ है, कुछ ब्लैक स्मिथ वहाँ पर है. और ये आयरन मिल ओनर है, इसको आयरन मास्टर भी बोलते हैं. क्या बोलेंगे? आयरन मास्टर. और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसमें का इसके बाद अगर कोई है तो वो है इडला विलमेंसन. ये उसकी बेटी है, डॉटर ऑफ द आयरन मिल ओनर. आयरन मिल ओनर मतलब कौन है? आयरन मास्टर. इतने कैरेक्टर्स है इसमें. चलो आगे बढ़ते हैं. सो ये पिक्चर है उनके. एडला विलमेंसन, आयरन मास्टर, ये इसकी बेटी है. हाँ. उसके बाद रेड ट्रैप पेडलर. ठीक है. ये सिर्फ रेड ट्रैप पेडलर नहीं रहता है, इसमें थोड़ी सी थ्योरी की आदत रहती है, चोरी वोरी भी करता है, उसी से रिलेटेड है ये. और एक क्रॉफ्टर है जो इसको आश्रय देता है वगैरह. आगे हम पढ़ेंगे, बड़ा मज़ा आएगा आपको. वेरी फाइन स्टोरी. ओके. तो ये कुछ कैरेक्टर्स है, थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में. सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने यहाँ पे लिख दी आपके लिए. ओके फाइन. चलिए, द रैट ट्रैप. सो अबाउट द ऑथर, Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history of the legends of that country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. ओके, देखिए हम डायरेक्टली हिट करते हैं स्टोरी को. देखिए क्या बोलते हैं. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. वायर यानी तार, है ना. तो एक समय की बात है, एक आदमी हुआ करता था जो रैट ट्रैप्स बेचने का काम करता था. ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स. ऑड मोमेंट्स यानी खाली समय. ऑड मोमेंट्स का मतलब है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. ऑड मोमेंट्स मीन्स यहाँ पे खाली समय. फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स. और किस मटेरियल से वो बनाता था? बड़े बड़े फार्म से वो मटेरियल मांग कर लाता था, भीख मांग कर लाता था या रिक्वेस्ट करके लाता था, बड़े बड़े स्टोर से और बड़े बड़े फार्म से. लोहे का मटेरियल समझते ना, तार, तो उससे जो है वो क्या बनाता था? वो रैट ट्रैप्स बनाता था और घर घर जाकर उनको बेचता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. लेकिन इतना करने के बावजूद भी उसका जो बिजनेस था रैट ट्रैप का, वो बड़ा क्यूअर बिजनेस था और उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था. सो ही हैड टू
रिसॉर्ट, रिसॉर्ट का मतलब यहाँ पे मैनेज, ही हैज़ टू मैनेज टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थ्योरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ये आइडम है, बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है लिविंग, समझते ना, मतलब जिंदा रहने के लिए उसको बॉडी एंड सोल टुगेदर रखने का मतलब है यहाँ पे उसकी लिविंग अच्छे से चले, तो उसका जीवन अच्छे से बीते, इसलिए सिर्फ रैट ट्रैप बेचकर जो है उसका काम नहीं चलता था, तो कुछ वो बेगिंग भी करता था, पैसा मांगता था, बेगिंग समझते ना, भीख मांगना। एंड पेटी थ्योरी, पेटी का मतलब स्मॉल, थ्योरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, थ्योरी यानी कहीं छोटी छोटी मोटी चोरी चकारी भी वो कर लेता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वेयर इन रैग्स, लेकिन इतना करने के बावजूद भी उसके कपड़े हमेशा बेकार रहते थे, खराब रहते थे, रैग्स में रहते थे, है ना, खराब से रहते थे। ही चिक्स वेयर संकन, उसके गाल जो है हमेशा अंदर धसे हुए रहते थे जैसा भूखे आदमी के होते हैं। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और हमेशा उसके आंखों में एक तरीके की भूख रहती थी, आराम की, भूख की उसको ज़रूरत हमेशा रहती थी। ना ही वो आराम कर सकता था, ना ही उसकी भूख पूरी होती थी, और ना ही उसके कपड़े जो है अच्छे रहते थे, फटे पुराने कपड़े वो पहनता था। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट पैराग्राफ, नथिंग more special. Okay, fine. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. Vagabond का मतलब यहाँ पे होमलेस पर्सन, हाँ, वेगाबॉन्ड, होमलेस। और दो तीन शब्द आए यहाँ पे, आवारा, जिसका कोई घर नहीं है ना, इसको बोलते हैं वेगाबॉन्ड। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road. Plot का मतलब चलना, हाँ, चलना, to walk, जो रास्ते पर अकेला ही चलता रहता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और अपनी ख्यालों में खोया रहता था। मेडिटेशन का मतलब यहाँ पे ख्याल, अपनी ख्यालों में खोया रहता था। ओके, बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू ए लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन ऐसे ख्याल में सोचते 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 कोई विचार उसके मन में आया। क्या विचार था वो? विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और वो विचार जो उसके दिमाग में आया वो बड़ा ही एंटरटेनिंग था। क्या था वो विचार? ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, जैसे वो रैट ट्रैप्स के बारे में बात कर रहा था कि इसको बेचना है, पैसा कमाना है, तो अचानक से उसके जहन में, दिमाग में ख्याल आया कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है ये क्या है। द होल वर्ल्ड with its lands and seas and its cities and villages was nothing but ए बिग रैट ट्रैप। देखिए क्या बोल रहा है, बड़ी सुंदर लाइन है ये। बोलता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड, जिसमें बड़ी बड़ी लैंड है, बड़ी बड़ी जगह है, पूरा जगहों से भरा हुआ है ये, सीज है, सिटीज़ है, विलेजेस है, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है दूसरा तीसरा कुछ नहीं है बल्कि एक रैट ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, और ये वर्ल्ड इसीलिए बना है, एग्जिस्ट इसीलिए है वर्ल्ड, ताकि ये कॉमन मैन को, कॉमन लोगों को छोटे मोटे बेट्स, छोटे मोटे बेट्स जो है, बेट मतलब ये मछली, आप देखिए मछली को जो ट्रैप होता है ना मछली को अटकाने के लिए, तो उसमें जो, उस ट्रैप में जो लगाते हैं, चाहे आटा लगाते हैं चाहे कुछ और कुछ लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं बेट। ठीक है, खाना कुछ फंसाने के लिए। Was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork.
तो ये वर्ल्ड जो है हमें क्या ऑफर करता है? ये वर्ल्ड हमें ऑफर करता है, अलग अलग तरीके के बेट्स ऑफर करता है। जैसे हमें ललचाता है किससे? रिचेस से, जॉयस से, शेल्टर से, फूड से। शेल्टर का मतलब घर, फूड यानी अलग अलग तरीके का खाना। तो ये हमें क्या करता है? ललचाता है, अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक रैट ट्रैप में कोई चीज़ का टुकड़ा हम रख देते हैं, कुछ पोर्क का टुकड़ा हम रख देते हैं। पोर्क समझते हैं ना? सुअर के मांस को पोर्क बोलते हैं, पिग के मटन को। ठीक है, उसका टुकड़ा रख देते हैं ताकि जो है उस चूहे को जो है अट्रैक्ट कर सके उसमें, और हम भी जो है इसी तरीके से उसमें अट्रैक्ट होते जाते हैं। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई व्यक्ति उस बेट को टच करने के लिए, समझ रहे ना, अट्रैक्ट करने हो जाता है उसके तरफ, टेम्प्ट हो जाता है। टेम्प्ट का मतलब होता है स्ट्रांग डिजायर, उसको बोलते हैं टेम्पटेशन, है ना। टेम्प्ट हो जाता है उसके तरफ, इट क्लोज्ड इट ऑन हिम, वो जो वर्ल्ड है, वो जो ट्रैप है, उस ट्रैप में वो फंस जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एंड, और उसमें बस वो फंसता चला जाता है, फिर उससे वो बाहर नहीं निकल सकता। तो ये सोच किसकी है? एक वेगाबॉन्ड व्यक्ति की सोच है, एक होमलेस व्यक्ति की सोच है, एक आवारा व्यक्ति की सोच है कि कैसे लोग जो है अलग अलग तरीके के ट्रैप्स में फंसते जाते हैं और अपने जीवन को क्या कर लेते हैं? वो बर्बाद कर देते हैं। उनके जीवन में किसी तरीके का सेटिस्फैक्शन नहीं रहता। देखिए, किसी भी तरीके का हमारे जीवन में लालच आ गया, किसी भी तरीके का लालच, तो सेटिस्फैक्शन उसका ख़त्म हो गया, क्योंकि वो लालच जो है किसी एक चीज़ से रुकने वाला नहीं है। ठीक है ना? अगर उसको कोई, मान लीजिए गाड़ी खरीदनी है, तो वो एक गाड़ी खरीद लेगा तो उसका लालच खत्म होने वाला नहीं है, फिर उसके दिमाग में और बातें चलती जाएगी, और बातें चलती जाएगी। एक घर खरीद लिया मतलब वो सेटिस्फाइड हो गया, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से डिज़ायर्स जो है उसका कोई लिमिट नहीं है। और ये डिज़ायर जो है हमारी जॉयस के प्रति, रिचेस के प्रति, शेल्टर के प्रति, फ्रूट के प्रति जो हमारी डिज़ायर्स है, ये जो बढ़ती जाती है। तो इसीलिए राइटर यहाँ पर बार बार ये बता रही है, बोल रही है कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है, और इस ट्रैप में अलग अलग बेट्स हैं तरीके के। जैसे चूहे के लिए चीज़ का टुकड़ा रखते हैं, पोर्क का टुकड़ा रखते हैं, वैसे हमारे लिए भी ये कहीं कहीं जो है बिछा हुआ है। और जो भी इसमें फंस जाता है वो हमेशा के लिए फंस जाता है। तो कैसे फंस जाता है? फिर चोरी करता है, डाका डालता है, ठीक है ना, अलग अलग भ्रष्टाचार करता है, अलग अलग तरीके से फिर उसमें वो फंसता जाता है। The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. तो वो जो वेगाबॉन्ड था, वो जो रैट ट्रैप पेडलर था, रैट ट्रैप सेलर तो जो था, उसके लिए, क्योंकि वो गरीब था, तो वर्ल्ड ने उसको कुछ भी नहीं दिया था, इस दुनिया ने उसको कुछ भी नहीं दिया था। वर्ल्ड हैज नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, एंड दैट इज़ वाई वो जो है इस वर्ल्ड के बारे में इल ही सोचता था, बुरा ही सोचता था। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स। प्लॉडिंग्स का मतलब होता है यहाँ पे चलना, प्लॉडिंग्स का मतलब भी चलना होता है, ठीक है। ड्रेरी यानी थकावट से भरी हुई। तो आज के दिन जो उसने सोचा है ये रैट ट्रैप्स के बारे में, ये वर्ल्ड जो है रैट ट्रैप है, ये विचार जो है अब तक का उसका सबसे चेरिस्ड पास टाइम था, सबसे अच्छा विचार था। To think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. snare का मतलब भी यहाँ पे ट्रैप, snare यानी ट्रैप। तो इस तरीके के, अब वो सब लोगों के बारे में सोचने लगा, अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगा, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचने लगा, या आसपास के लोगों के बारे में सोचने लगा कि जो लोग इस डेंजरस स्नेयर में फंस चुके थे, एंड ऑफ अदर्स हु वेर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट। और उन लोगों के बारे में भी वो सोच रहा था जो अभी भी वो बेट के आसपास सर्कल लगाए हुए हैं, अभी भी घूम रहे हैं, अभी भी उसमें फंसने की कोशिश में वो लगे हैं। तो यहाँ तक की ये कहानी है। फिर आगे, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग, ट्रजिंग का मतलब वॉकिंग, वॉकिंग ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड,
ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। अब वो होमलेस व्यक्ति है, हाँ, उसका रहने का अपना खुद का कोई घर नहीं है। तो जैसी शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो वो अपने लिए शेल्टर तलाश करता है, अपने लिए जो है घर तलाश करता है सोने के लिए। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक छोटा सा कॉटेज उसको नजर आया। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। और उसने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि क्या वो उनको शेल्टर दे सकते हैं। हर रोज़ ऐसे ही करता है। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड। और उसको शेल्टर मिल भी गया। उसको जो भी उसके अंदर जो भी व्यक्ति था उसने उसको मना नहीं किया। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, मतलब ही वॉज नॉट रिफ्यूज बाय द वन इन दी कॉटेज। Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. ये क्रॉफ्टर है, तो बोलता है अब तक तो उसको बिल्कुल सोर फेसेस मिलते थे, है ना, एकदम ऐसे दुखी चेहरे वाले लोग। जैसे ही वो बोलता था शेल्टर के लिए तो मना कर देते थे। सोर फेसेस समझते ना, ये हमने एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में पढ़ा है, हाँ? निस्तेज चेहरे, है ना, जो चेहरे के ऊपर कोई जो है आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। और कोई भी शेल्टर मांगेगा, हर व्यक्ति आपको शेल्टर नहीं प्रोवाइड कर सकता ना। लेकिन यहाँ पर ये जो आदमी जो उस कॉटेज में रहता था उसने उसको शेल्टर प्रोवाइड किया, क्योंकि वो अकेला रहता था, ना उसकी वाइफ थी ना ही उसके कोई बच्चे थे। और उस आदमी को बड़ी खुशी भी हुई, वॉज वेरी हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। ओके। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। इमीडिएटली जो है उसने न सिर्फ उसको शेल्टर दिया बल्कि पॉरिज भी बनाया, पॉरिज का पॉट भी रखा फायर के ऊपर उसको खाना खिलाने के लिए। सपर का मतलब डिनर होता है, हाँ, सपर मीन्स डिनर। उसको खाना खिलाने के लिए जो है वो पॉरिज का पॉट भी उसने रखा। अब पॉरिज क्या है? पॉरिज इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल फूड्स। हाँ, खिचड़ी मान लीजिए, अलग अलग तरीके का जो धान वान जो है उसको मिक्स करके खिलाता है। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. उसके बाद उसने उसको सिगार भी पिलाई, पाइप भी पिलाया। पुराने ज़माने में इस तरीके से पीते थे, है ना, तंबाकू, टोबैको रोल, समझते हैं ना, टोबैको का टुकड़ा था, तो उसमें का आधा टुकड़ा जो है उसने उसको दिया और दोनों ने जो है सिगार पिए। Finally, he got out an old pack of cards and played majolis with his guest until bedtime. और इतना ही नहीं, और एंटरटेनमेंट एक दूसरे के साथ करने के लिए उसने जो है पैक ऑफ कार्ड्स निकाला, समझते ना, पत्ते पत्ते निकाले और दोनों मजोलिस नाम का गेम भी उसमें खेले। समझ गए ना, मजोलिस एंटरटेन किया। मजोलिस इज ए गेम, कार्ड गेम, ब्लैक कार्ड्स के साथ जो खेलते हैं, प्ले कार्ड्स के साथ। ओके। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पॉरिज एंड टोबैको। तो उसने जो है उस पेडलर के साथ, उस रेड ट्रैप सेलर के साथ, उस ओल्ड मैन ने न सिर्फ पॉरिज शेयर किया, न सिर्फ अपना खाना शेयर किया, न सिर्फ टोबैको शेयर किया, बल्कि अपने कॉन्फिडेंसेस भी शेयर किए। कॉन्फिडेंसेस का मतलब होता है सीक्रेट्स, है ना, उसके वाइफ के बारे में, बच्चों के बारे में, उसके पर्सनल लाइफ के बारे में, है ना, जो बातें होती है उसने उसके साथ शेयर की। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर। अभी होस्ट कौन है? कोई दूसरा नहीं है, होस्ट है ना वही क्रॉफ्टर, जिसने उसको आसरा दिया है घर में, ठीक है। और गेस्ट कौन है? गेस्ट है पेडलर। अरे उस घर किसका है? ओल्ड मैन का है। तो ओल्ड मैन कौन है? क्रॉफ्टर है। क्रॉफ्टर का मतलब क्या है? एक रैम्स जो आयरन वर्क्स में वो काम करता है, करता था, ठीक है। तो अब वो उसने छोड़ दिया है वहाँ का काम, ठीक है। एक माइन वर्कर है मान लीजिए, वो आयरन वर्कर है।
So the guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land. वर्क ऑन लैंड का मतलब जमीन पर वो काम करता था, इसका मतलब वो अभी आसमान में ऐसा नहीं है, जमीन पर काम करता था, मतलब फैक्ट्री में वो काम करता था. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम. अब वो बूढ़ा हो गया था और उसने कहा कि वो डे लेबर अब नहीं कर सकता. डे लेबर मतलब रोज का काम वो नहीं कर सकता क्योंकि ओल्ड हो गया है. तो उसके पास उसने कहा कि फिर उसका घर कैसे चलता है आजकल. तो उसने कहा कि उसके पास एक काऊ है. क्या है? काऊ. वो काऊ जो है उसका दूध बेचकर जो है वो उसका घर चल जाता है. यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी. वो बताया, बॉसी का मतलब काऊ को बोला गया. बॉसी, बॉसी मीन्स काऊ. यहाँ पर बॉसी का मतलब काऊ है. हाँ, वो बोलता है दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी, सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट. क्रोनर जो है स्वीडन की करेंसी है. क्रोनर. तो उसको कितने क्रोनर मिले हैं? कुछ पिछले आखिरी महीने में, लास्ट महीने में उसको उस दूध बेचकर जो है क्रीमरी में, क्रीमरी का मतलब डेयरी, समझते हैं ना. क्रीमरी मतलब डेयरी जो है, दूध का शॉप जो है, वहां पर जो है उसने दूध बेचकर कितने क्रोनर कमाए? 30 क्रोनर कमाए. उस जमाने में 30 क्रोनर है ना, बहुत रुपया, आज के 3-4 हज़ार मान लीजिए. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव हैड सीम्ड इनक्रेडुलस. स्ट्रेंजर को उसकी ये बात जो है एकदम सही नहीं लगी, इनक्रेडुलस लगी. फॉल्स. इनक्रेडुलस का मतलब होता है फॉल्स. इनक्रेडुलस मीन्स फॉल्स. उसको एक बात कुछ उसने ऐसा दिखाया कि अच्छा तुम सचमुच ये बोल रहे हो, 30 करोड़, सॉरी 30 क्रोनर तुमने कमाए, मतलब इतने पैसे कमा लिए तुमने दूध बेचकर. तो उसने थोड़ा आश्चर्य जताया. किसने? इस पेडलर ने, रेड ट्रैप पेडलर ने. फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप. लेकिन जैसे उसने ऐसा कहा तो ओल्ड मैन जो है उठा वहाँ से, एंड वेंट टू द विंडो. और कहाँ चला गया? विंडो में चला गया. टुक डाउन ए लीदर पाउच. उसने एक लेदर का, चमड़े का पाउच रखा था वहाँ पे. विच हंग ऑन द नेल. नेल समझते ना, कील. नेल है ना कील, जो ठोकते हैं ना हम, जहाँ पे कपड़े लटकाते हैं उसको भी नेल बोलते हैं. नेल है ना कील. इन द वेरी विंडो फ्रेम. और वो विंडो के बिल्कुल बाजू में जो है वो पाउच रखा था. उस पाउच में, उस पॉकेट में, एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल 10 क्रोनर बिल्स. बिल्स का मतलब नोट, बिल का मतलब नोट. उसने 3 जो है वहाँ से नोट उसको लाकर दिखाए. दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट. और उसने दिखा के जो है उसके आंखों के सामने रखे. देखो, उसने बोला तुमको झूठ लग रहा था ना, ये देखो, ये 30 क्रोनर जो है मैंने कमाए हैं. एंड नॉडिंग नोइंगली. और उसने भी गर्दन हिलाई कि हाँ भाई तुमने कमाए होंगे. एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच. और उसके बाद फिर से जो है उसने पाउच के अंदर वो रख दिए, और वो नोट उसी पाउच में भरकर वही खिड़की के बाजू में लगा दिए. ठीक. अब आप जानते हैं, हमने जैसे शुरुआत में पढ़ा कि ये जो पेडलर था ये सिर्फ रैट ट्रैप बेचने का काम नहीं करता था, कभी कभी थोड़ी सी चोरी वोरी भी कर लेता था क्योंकि उसका घर चलने के लिए. द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन द गुड सीजन. अब गुड सीजन का मतलब यहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग. हाँ, गुड सीजन. ठीक है, अर्ली ज़्यादा वो नहीं है, कुछ बड़ा इजी इजी आसान आसान सा सब बात है. अर्ली इन द मॉर्निंग, गुड सीजन का मतलब द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काऊ. क्योंकि सुबह उठ गए थे वो, क्रॉफ्टर जल्दी उठ गया था, और उसको सबसे उठ के सबसे पहले काम क्या करना है कि गाय का दूध निकालना है. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप. और जो इसका गेस्ट जो था, ये जो पेडलर था, उसने भी सोचा अरे हमारा होस्ट तो जाग गया है जल्दी, तो हमको जो है अच्छी बात नहीं है बहुत देर तक जो है वहाँ पर पड़े रहना, सोते रहना. तो वो भी उठ गया. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. दोनों ने जो है कॉटेज को छोड़ा एक ही समय.
द क्रॉप्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। क्रॉप्टर ने जो है दरवाजे को लॉक किया और चाबी को अपनी जेब में रख लिया। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। और वहाँ से जो है दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय कहा, थैंक यू वगैरह कहा, और दोनों एक अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, लगभग आधे घंटे बाद, द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। वो रैट ट्रैप पेडलर जो है फिर से एक बार वो दरवाजे पर आया। अब ना वो क्रॉप्टर अब घर पे नहीं है ना, वो गाय का दूध निकालने गया है। वो कहीं दूर रखी होगी गाय उसने घर के। तो आधे घंटे बाद वो फिर से वापस आया। बट ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, हाउ एवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो। वो दरवाजे से अंदर नहीं गया, ना उसने लॉक तोड़ा। उसके दिमाग में है ना वो 30 क्रोनो हो रहा, भूलना नहीं। वो 30 क्रोनोर उसके दिमाग में थे। अब आप रैट ट्रैप समझिए। हाँ, डू नॉट फॉरगेट दैट रैट ट्रैप जो हमारा टाइटल है, यही रैट ट्रैप है। 30 क्रोनोर कहाँ रखे हैं? विंडो के पास रखे हैं। विंडो जो आसानी से खुल सकती है, उसका पेन तोड़कर कोई निकाल सकता है। तो जो पेडलर उसके घर में आया था तो अट्रैक्ट हो गया, वो टेम्प्टेड हो गया। वो बेट उसको मिला, जो बेट की बात हम कर रहे हैं ना, जैसे चूहे को पिंजरे में फंसाने के लिए जैसे चीज़ का टुकड़ा, पोर्क का टुकड़ा डालते हैं, तो ये 30 क्रोनोर क्या है? ये 30 क्रोनोर वो चीज़ का टुकड़ा है चूहे को फंसाने के लिए। चूहा कौन है यहाँ पे? चूहा है वो पेडलर, वो रेड ट्रैप सेलर जो वेगाबॉन्ड है, जिसको हमेशा पैसों की ज़रूरत रहती है। रेड ट्रैप बेचकर उसका काम नहीं चलता। ठीक, तो वो सब हॉस्पिटैलिटी भूल गया कि रात भर उसने उसको आश्रय दिया, वो दिया। नहीं नहीं, उसके दिमाग में क्या रहा? उसके दिमाग में वो 30 क्रोनोर रहा है, क्योंकि वही बेट है। और पेडलर का ये भी कहना है, अभी अभी हमने देखा, कि ये वर्ल्ड इसीलिए एग्जिस्ट हुआ है, किस लिए? कि लोगों को उनके डिजायर्स के हिसाब से फंसाया जा सके। ठीक है, तो यू शुड नॉट फॉरगेट दैट रैट ट्रैप। ये फंस गया है उसमें। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो विंडो के पास गया। स्मैश्ड ए पेन, उसने जो है एक विंडो पेन, पेन समझते ना, खिड़की के तावदान, एक विंडो पेन को जो है मुक्का मार के तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और वो 30 क्रोनर के पाउच को छुआ, उसने पकड़ा, होल्ड किया। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसने उसमें से 30 क्रोनर निकाले, अपने पॉकेट में डाले। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। और 30 क्रोनर उसने अपनी जेब के अंदर डाले, वहां से वो चला गया। समझ रहे हैं? द रैट ट्रैप। एवरीवन यहाँ पर, रिचेस, मनी, गर्ल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शेल्टर, फूड, गुड लाइफस्टाइल, फैशन, good career, all these things are rat traps. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. तो जैसे वो जा रहा था, he was very much pleased with his smartness. ओ, अपने smartness पे उसको बड़ा गर्व हो रहा था। He was very happy, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था कि कितने स्मार्ट तरीके से जो है उसने वो पैसा चुरा लिया। He realized, of course, that at first he dared not to continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. Woods है ना, जंगल। अब उसके ध्यान में आया कि जैसे उसको पता चलेगा 30 क्रोनर का चोरी होने का, तो हो सकता है उसको शेरीफ या पुलिस जो है आकर पकड़ ले, है ना,
या उसकी कंप्लेंट हो जाए या वो खुद आकर उसको पकड़ ले, तो उसने जो है मेन जो हाईवे था, मेन जो रास्ता था वो छोड़ दिया। रैट ट्रैप्स भी उसके पास ही है, हाँ? और वो जंगल में निकल गया। कहाँ निकल गया? जंगल में। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। शुरुआत में तो आसानी से वो जाता रहा, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स। और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, जैसे जैसे दोपहर होती गई, अब उसकी जो डगर थी वो कठिन होती चली गई। क्या हुआ? लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स। वर्स समझते हैं ना? गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक, डिग्री है ये। और बैड, वर्स और वर्स्ट। ठीक है, आगे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू। क्योंकि वो जिस जंगल की तरफ निकल गया था, उसके लिए वो एकदम स्ट्रेंज जंगल था, एकदम अजीब अजनबी था वो जंगल में, और बड़ा ही कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था, और उसमें वो खो गया। बिग एंड कंफ्यूजिंग। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. बोलता है कि वो किसी डेफिनेट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा था, कि कोई डायरेक्शन ऐसी मिल जाए उसको सही दिशा में जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पूरी तरीके से भटक गया, भूल गया, कंफ्यूज हो गया और इधर उधर भटकने लगा। He walked and walked without coming to the end of the wood. चलता गया और जो है कोई एंड ही नहीं था उस वुड को, क्योंकि उसके जेब में वो पैसा था और पैसे की वजह से वो भाग कर आ गया। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और उसके ध्यान में आया कि वो जिस तरीके से भी जा रहा है वो एक ही जगह वापस आ रहा है, और वो जंगल में भटक गया है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। अचानक से उसके दिमाग में, ऑल एट वंस, समझ रहे? ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। अब उसी के वही विचार उसके दिमाग में आए। थोड़ी देर पहले जो विचार कर रहा था कि कैसे इस दुनिया में लोग रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। और इस रैट ट्रैप में फंसने का अब किसका टर्न है? अब उसका खुद का टर्न है। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. Okay? उसने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया, वो बेट में फंस गया। बेट यानी क्या है यहाँ पे? 30 क्रोनोर, समझ रहे हैं ना आप? जिसका लालच उसको दिखा, क्या है वो? 30 क्रोनोर के वो उसमें वो बेफूल हो गया। एंड हैड बीन कॉट, और फंस गया। The whole forest, with its trunks and branches, its thickest and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. ठीक, ये जो फॉरेस्ट उसको नज़र आ रहा है, हर जगह जो उसको बड़ी बड़ी टहनियाँ, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े वृक्ष जो है, एंसेंट एंसेंट पेड़ जो है वहाँ पर उसको नज़र आ रहे, लॉग्स नज़र आ रही बड़ी बड़ी। उसको ऐसा लग रहा है कि दिस इज एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। ऐसा प्रिजन है, ऐसा जेल है जिसका कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं है। इम्पेनिट्रेबल है ये, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। और ये ऐसा जंगल है ये ऐसा प्रिजन है जहाँ से वो वापस नहीं आ सकता। ये कुछ और स्वीडन के माइंस की जानकारी इसमें थोड़ी सी आप पढ़ लेना। ये वो बेट है, ये बेट हम बात कर रहे थे ना, तो ये बेट है वो जो रखा जाता है चूहे को लालच दिखाने के लिए। ठीक, ये देखिए वो रेड ट्रैप बेच रहा है जगह जगह जाकर। तो ये इसको मान लेते हैं हम क्रॉफ्टर है ये। ये रेड ट्रैप है इस तरीके से। और जैसी वो
यहाँ पे कुछ चीज़ का टुकड़ा रखा होता है, ठीक है, कुछ भी टुकड़ा रखा होता है, जैसे ही चूहा उसके अंदर जाता है उसमें वो फंस जाता है। हाँ, तो कुछ वर्ड्स है इसमें, अच्छे से देख लेना। क्रॉफ्टर, इम्पेनिट्रेबल का मतलब देखिए इम्पॉसिबल टू पास थ्रू और एंटर, जिससे आप कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। ग्लूम का मतलब होता है टोटल डार्कनेस, है ना, ये सारी चीज़ें। ओके, तो इट इज़ ऑलरेडी 45 मिनट्स एंड आज के लिए इतना है। आगे का जो वीडियो है हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। ओके, एंड रिमेंबर इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।